Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. My dear students, today we going to continue our chapter Refraction and Dispersion of Light. In the previous videos, we have covered some topics of this chapter like dispersion and refraction introduction. Now, we're going to start or discuss next topic of this chapter, that is lens. It is a very interesting topic of this chapter. My dear students, in this topic we're going to cover some subtopics like what is lens and types of lenses, terms related to lenses, and image formed by different lenses. So let's start. What is lens? It is a transparent medium. You have done transparent medium like prism and glass lab in the previous topics. In the same way, there is another transparent medium called lens but have different shape. So the definition of lens is it is a transparent medium bounded by two, or you can say at least one spherical surface. At least spherical surface is called lens. हैविंग टू सरफेस, यहाँ पर दो सरफेस होंगी और उनमें से एटलीस्ट कोई कम से कम एक क्या होगी, स्फेरिकल सरफेस होगी. एंड वेरी सून यू गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट दिस टर्म एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल. सो कीप पेशेंस फॉर इट. नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेज. देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज. नंबर वन, कन्वर्जिंग लेंस. नंबर टू, डाइवर्जिंग लेंस. The another name of converging lens is convex, and the another name of diverging lens is concave. And you can see the shape of these lenses. This is the shape of convex lens, and this is the shape of concave lens. Now, again, we're going to revise the definition of lens. A transparent medium bounded by two surfaces. This is the first surface and second surface. First surface and second surface. A transparent medium bounded by two surfaces of which at least one surface is spherical. What is the mean of this line? At least one surface is spherical. You can see this diagram. These are two diagrams of lenses. How convex lens is made? बनता कैसे है? You need two transparent spherical balls here. हमें दो spherical balls की need है और वो transparent होनी चाहिए, ठीक है? Because it is made in the laboratories and industries. तो industries में होता क्या है कि जो आपकी spherical balls हैं, transparent spherical balls, उनमें से when we diffuse these two transparent spherical balls, the medium part, this part is called कन्वेक्स लेंस. जब हम दो स्फेरिकल बॉल्स को मिला लेते हैं और इनको डिफ्यूज कर देते हैं एक दूसरे की बॉडी में, पूरा डिफ्यूज नहीं करना है, कुछ लिटिल पार्ट डिफ्यूज करना है. यू कैन सी हियर दिस इज द ए बॉल एंड दिस इज स्फेरिकल बी बॉल. तो जब हम दोनों बॉल्स को डिफ्यूज करते हैं लिटिल बिट, तो जो मीडियम पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस. मींस टू सरफेसेस आर स्फेरिकल. यहां पर क्या लिखा था? एटलीस्ट वन सरफेस, कम से कम एक तो होनी चाहिए. तो यहां पर दोनों है, तो दिस इज लेंस. दिस प्रूव द डेफिनेशन ऑफ लेंसेस. यहां पर ये सरफेस भी स्फेरिकल है एंड दिस सरफेस इज आल्सो स्फेरिकल, तो मींस दिस इज अ लेंस. नाउ नंबर टू केस, हाउ concave lens is made in the industries and laboratories. When we take two spherical balls, transparent spherical balls, और यहां पर उनको डिफ्यूज नहीं करना है. In this case we do not going to diffuse that balls, but उनको पास में लेके आना. जो उनका बीच का एरिया है, the medium portion जो बनेगा, this portion is called concave lens. And you can see here also both surfaces are spherical. ये surface भी spherical है और ये surface भी spherical है. तो जो बीच वाला portion है, medium portion, this portion is called concave. At least one surface is spherical. यहां तो दोनों surface spherical है, whether it is a case of convex lens or whether it is a case of concave lens. Both lenses have two spherical surface. So
क्या कोई ऐसा लेंस भी है जिसमें ओनली वन स्फेरिकल सरफेस हो? यस, वो ऐसे होते हैं बेटा, लाइक दिस. One surface is spherical and another surface is straight, plane. Same in the concave lens. One surface is plane, other surface spherical. But in this class or in this chapter, there is no case like that. वो मैंने आपको बताया है जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज कि हाँ ऐसे लेंसेज होते हैं और फ्यूचर में आपके यूज होंगे, बट नॉट इन दिस क्लास. ओके, सो इन दिस क्लास we're going to learn only two type of lenses. Number one, convex lens, and number two, concave lens. Okay, my dear students, so this is all about lenses and the types of lenses. Now we're going to start next topic, subtopic you can say, terms related to lenses. We have four terms that is related to lenses. Number one, principal axis. Number two, optical center. Number three, principal focus, and number four is focal length. So let's start with the first term, principal axis. Principal axis. Principal axis is a line that joins two centers of two sphericals is called principal axis. The centers of two sphericals are here. This is the centers of two spheres here. So a line that joins these two centers is called principal axis. And in the same case is in diverging lens. And definition is same. A line joining the two centers of spheres is called principal axis. So you can see these horizontal lines that joins two centers. You can assume C1 and C2. C1 is the center of sphere 1 and C2 is the center of sphere 2. So the line that joins C1 and C2 is called principal axis. A very simple definition here. Now next, optical center. But before going to start optical centers, we should know some interesting features of convex and concave lens. And what are that interesting features? Number one, convex lens converge or you combine the upcoming light rays. What I'm saying, listen carefully. The upcoming rays of lights combined here after refraction. In the beginning you have done कि when a ray transfer or pass from one medium to another or in a transparent medium, it always bend. But bending is where? Towards or inwards, outwards or inwards. So here you can see convex lens, when a beam of light passes these transparent convex medium, it bends in inward direction. This is the feature of convex lens. And what happens in concave lens? When a beam of light passes through concave medium, it always bend outwards. They does not combine here, but in the first case all the light rays coming from the another direction combine at a single point. They bend at a single point. They always bend inwards. अंदर की तरफ bend होगी और यहाँ पर outward. So this is the features of these two lenses. Now what are the shapes of convex lens? You can see this is convex lens, this is concave lens. It is thicker in the medium and thinner at the edges. This shape is of convex lens. And in the concave lens, it is thin at the medium, and thicker at the edges.
This type of lens is called concave lens. But you should know the first features of convex and concave lens. Never forget, my dear students, that convex lens always bend light rays in inward direction, and what happens in concave, it always bend the light in outward direction. Okay. Now number 2 term is optical center. My dear students, there is a point in these two type of lenses where light does not bend. Very interesting. It's a very interesting point कि एक ऐसा point होता है जहां पर light bend नहीं करती when it passes through these lenses, and that point is called optical center. This is the point here. It lies on the principal axis in the center of lens. This is the center of concave lens and this is center of convex lens. This is the point. Whenever, my dear students, listen carefully. Whenever a light passes through these points, it never deviates. It does not deviate. You can see here, when a ray of light passes through these optical center, it does not deviate. Very interesting. क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि whenever a beam of light passes through a transparent medium, it always bend, but it does not happen at the optical center. This is the exceptional feature, you can say, of these lenses. Okay. Now number 3, principal focus. My dear students, principal focus is a point where all the beam of light merge, or you can say combine, after refraction, or you can say after pass through the lenses. What I'm saying, I can draw also. When a beam of light passes through this transparent medium, first we take a case of convex lens. So when a beams of light passes through this medium, what happens in convex lens? It converges or it combines or you can say it can bend the lenses in inward direction. And the point where beam of light meets after refraction, or you can say after pass through the lenses, is called focus. Where the rays of light meet is called principal focus, or you can say simply focus. Okay. But in convex lens, what happens? Is there any focus in concave lens? Yes, there is a focus also in concave lens. Let's see how. When beams of light passes through concave lens, what happens in concave lens? It bends the rays in outward direction, like this. But what I told you, principal focus is a point where beam or ray of light meet, but there is no meeting. It spreads in a different direction. But our eyes only can see the straight path. So we can say it appears to come. हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पर लगता है, इट सीम्स, कि जहां पर रेज मीट हो रही हैं, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि जो रेज है वो बैक पॉइंट से आ रही हैं. दिस पॉइंट वेयर दीज टू रेज मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. यहां पर प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? वर्चुअल होगा. कैसा होगा? वर्चुअल. रियल में नहीं है, बट इट सीम्स, लगता है कि यहां पर है, बिकॉज आवर आईज कैन ओनली सी द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइन. तो उसको ऐसा लगता है कि जो रेज आ रही हैं वो दिस पॉइंट से आ रही हैं. तो यहां पर जो पॉइंट बैक साइड में जो मिल रही है, इमेजिनरी लाइंस है. तो ये प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा? ये भी इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा. बट रियल फोकस कहां पर होगा? हमारा कन्वेक्स लेंस में. वहां तो एक्चुअली में मीट कर रही है, एक्चुअली मीट है, बट यहां पर इट सीम्स, लगता है ऐसा. ठीक है ना? तो फोकस दोनों जगह होंगे, एक जगह रियल होगा और दूसरी जगह हमारा वर्चुअल फोकस होगा. ठीक है? तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस. नाउ नंबर 4, फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस, द लेंथ
between the optical center and the focus is called focal length. ये ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है ना. That the distance between the focus and the optical center is called focal length. This is focal length. So till we have completed the basic introduction of lenses and the terms related to lenses. Now we are going to start the image formed by the different type of lenses. Yes, my dear students, the topic is image formed by lenses. But before going to start this topic, we should know 3 cases of image formation. And what are 3 cases? Means इन 3 cases में हम क्या करने वाले हैं कि जब रेज किसी लेंस में एंटर करती है तो जिस वे में वो एंटर करती है तो इमर्ज कैसे होती है, यानी बाहर निकलती कैसे है. तो उसके एंटर करने के जो वे हैं वो 3 हैं और जो इमर्ज है तो वो भी डिफरेंट वे 3 डिफरेंट वे में वो बाहर आएगी. So these are 3 different ways to enter in the lenses of beam of light, or you can say ray of light. First, when a ray of light parallelly enter, or you can say parallel to the principal axis, enter in the convex lens, what happens in that case? Means when a ray of light enters parallelly to the principal axis, it will emerge out. It will emerge out through the principal focus. वो कैसे बाहर आएगी? बैंड तो डेफिनेटली होगी क्योंकि जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो रेज को बैंड कर देते हैं. दिस इज अ टॉपिक रिफ्रैक्शन, वो रिफ्रैक्शन करते हैं. बट इट विल इमर्ज आउट थ्रू द पॉइंट कॉल्ड फोकस. दिस इज द फर्स्ट केस. You should know this case. Now, number 2. What happens when a ray of passing through the optical center? Means what happens when a ray of light passes through this point O called optical center. I already told you this is the exceptional case. Whenever a ray of light passes through optical center, it goes undeviated. Okay, it goes straight. Now, third case. What happens when a ray of passing through the focus? Okay, this is the opposite case of this one. ये इसका opposite case है. When a ray of light passes through focus like this, it will emerge out parallel to the principal axis. What happens in the first case? When a ray of light parallelly enters the convex lens, it will emerge out through point F. But this is the opposite case. When a ray of light passes through the principal focus and enter in the convex lens, it will emerge out parallelly to the principal axis. So you should know these 3 cases. Now we going to start image formed by convex lenses. कनकेव की भी करेंगे बट पहले हम करने वाले हैं कन्वेक्स लेंस की. यहाँ पर मैंने कनकेव को क्यों शो नहीं किया? कनकेव लेंस के लिए मैंने केसेस नहीं बताए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही केस होता है, वहाँ पर ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, वहाँ बहुत सारे केसेस नहीं है, वहाँ ओनली 1 केस है. ठीक है, वो सबसे लास्ट में करेंगे. यहाँ तो कितने सारे केसेस हैं, आपने हर केस में देखना है, हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिसाइड करना है कि इमेज कैसी बनेगी. ठीक है, किसी भी लेंस या मिरर के सामने जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है. अगर मैं लेंस में अपने आप को देख रहा हूँ या मिरर में अपने आप को देखता हूँ तो आम एन ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ. ठीक है ना, तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिसाइड करना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी. बिकॉज द टॉपिक इज इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसकी पोजीशन पे डिसाइड करना है हमने, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट वेरी फार ऑफ, यानी जब वो इन्फिनिटी पे हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इन्फिनिटी, where image formed and what is the nature of image. This is our duty to find out here. Number 2, when the object beyond 2f, when the object at 2f. Now what is 2f? We know f, the distance between the optical center and the focus is focal length and focus. We know f. Now if we double the distance, if we double this distance, that is 2f. Imagine this is 1 centimeter. Then 2 सेंटीमीटर इज 2f. सिंपल एक नाम दे दिया 2f, कुछ डिफरेंट नहीं है. फोकल लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो वो 2f है.
तो फर्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, वेरी फार, इन्फिनिटी पे। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो कैसी इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पे हो तो कैसी इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो यहां पर तो इमेज कैसे बनती है, उसका नेचर क्या है। जब ऑब्जेक्ट f पे हो तो कैसी इमेज बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट f और o के बीच में हो तो कैसी इमेज बनती है, उसका नेचर क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है ना। इमेज कैसे बनती है, यानी इमेज अपराइट है, इरेक्ट है, स्मॉल है, डिमिनिश है, मैग्नीफाई है, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। ठीक है ना। तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आपने नोटिस किया कि फर्स्ट से लेकर 6 केस तक हम लेंस के पास आते जा रहे हैं। पहले वाला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, फिर वो 2f से बियॉन्ड हुआ, फिर एग्जैक्ट 2f पे आ गया, फिर f और 2f के बीच में, फिर f और a के बीच में, यानी दूर से पास आता जा रहा है। और उसी केस में आपने बताया कि इमेज कैसी बनेगी, क्या वो दूर जाएगी, पास जाएगी, अपराइट होगी, इरेक्ट होगी, क्या इन्वर्टेड होगी, वो सब हमने बताना है। तो हम हर केस को ऑब्जर्व करने वाले हैं विद डिटेल। हम डायग्राम्स बना के देखेंगे कि वो इमेज कैसे है, उसका नेचर कैसे डिसाइड होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब हमें इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट कर भी हमने की है, बट उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत याद रखनी है, मतलब आपने भूलना नहीं है, एक इमेजिनेशन पावर आपकी होनी चाहिए। आपने इमेजिन करना है। यहाँ पर रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन और स्केचेस, बट हम उनको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सिंगल रे को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमें इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना पड़ता है किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट केस लिखा है, ऑब्जेक्ट वेरी फार ऑफ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कन्वेक्स लेंस से, क्योंकि हमने स्टार्ट कन्वेक्स लेंस किया हुआ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कन्वेक्स लेंस से काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी पे है, यानी हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। और यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का, जो हमारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो दे आर प्रेजेंट एट इनफिनाइट पोजीशन फ्रॉम आवर अर्थ। तो अगर अर्थ पे लेंसेज हैं और ऑब्जेक्ट इनफिनाइट है, बहुत दूर है, तो कैसी इमेज बनेगी। जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप में लेंसेज यूज होते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, वो यही हम देख भी पाते हैं। ठीक है ना। तो हमें वही डिसाइड करना है कि वो इमेज कैसे बनेगी टेलीस्कोप के अंदर। देखिए बेटा, अब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रेज, उसके ऊपर लाइट रेज बम्बार्डिंग होती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब मिलियंस ऑफ रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी इस मार्कर के ऊपर मिलियंस ऑफ रेज बम्बार्डिंग हो रही है, और ये मिलियंस ऑफ रे को रिफ्लेक्ट भी करता है। रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ, नॉट रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है ना। तो हम सभी रेज को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड उसमें कम पड़ जाएगा। तो हमने सिर्फ 2 रेज को इमेजिन करना है। वी गोइंग टू इमेजिन ओनली 2 रेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकल रही हैं, बस हमें इतना याद रखना है, वरना तो मिलियंस में निकलती हैं। लेकिन मिलियंस कंसीडर करेंगे तो ड्रॉ करते करते हमें शाम हो जाएगी, लेकिन एक केस भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ 2 रे को ही कंसीडर करते हैं। ये अगर मार्कर है तो हम क्या करने वाले हैं, एक इसके स्टार्टिंग एंड पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक इसके एंड पॉइंट पे 2 रेज निकलती हैं, हम सिर्फ ये कंसीडर करें किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तो एक ऐसा स्टार जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, अगर वहां से लाइट आपके लेंस में आती है तो जो उसकी फर्स्ट रे है दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और जो सेकंड रे है वो कहां से पास होगी, क्योंकि काफी दूर है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होगी। हमने दोनों पॉइंट कंसीडर, 2 रे आ रही हैं और एक जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और दूसरी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द केसेस। व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट केस, इट गोज अंडरवेटेड, एंड व्हाट हैपेंस इन द सेकंड केस, इट गोज बैंड। ये क्या होगी, बैंड हो जाएगी, और वो इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन एवर अ रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इट विल इमर्ज आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दोनों हमने यहाँ पर प्रूव किए हैं। तो यहाँ पर दोनों लाइन जो रेज है वो मीट हो रही हैं, दिस पॉइंट, और जहां पर मीट होती है वहीं पर बनती है हमारी इमेज। इमेज कहां पर बनती है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होती है, वेयर रेज ऑफ लाइट मीट, एक्चुअली मीट। तो यहाँ पर एक्चुअली मीट हो रही हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ऐसी इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, उस इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है, उल्टा दिखाई देगा आपको। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज। नंबर 2, ये कैसी इमेज है, रियल है या वर्चुअल है। यहां पर रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं, जहां पर एक्चुअली मीट होती हैं वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और जहां पर एक्चुअली मीट नहीं होती, जहां पर सीम होता है, लगता है, इट अपीयर्स, वो वर्चुअल होती है। तो यहां पर इमेज रियल है। अब
जो इमेज का साइज है वो मैग्नीफाई है या स्मॉल है। अब एक स्टार है वो तो अर्थ से भी बड़ा हो सकता है, सन है, सन का साइज बहुत बड़ा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी क्या वो मैग्नीफाई उतनी ही बनेगी सेम साइज की? नहीं, वो स्मॉल बनती है। इतनी सी इमेज बन रही है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, इमेज इतनी सी बनती है, यानी छोटी है। डिमिनिश, diminish, small, you can say small image. So this is the nature of image formed when a ray coming from infinity, when object is present at very far off, or you can say infinity, the image formed is inverted, real and diminished. Okay, I hope you understand very well. Now number 2 case, what happens when object beyond 2f? So this is your convex lens, this is point O, this is F and this is 2F. When the object is present 2F, beyond 2F, जो beyond 2F है तो उसको तो हम दिखा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो इन्फिनिटी में नहीं है, वो किलोमीटर में हो सकता है, वो मीटर में हो सकता है, बट इन्फिनिटी में नहीं है। तो जब वो किलोमीटर मीटर में है एंड वी कैन इजिली मेजर, देन वी गोइंग टू शो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा हुआ दिखाएंगे। यस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जब भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे तो उसमें से बड़ी सारी रेज निकलनी है, लेकिन हमने सिर्फ 2 रेज को ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये रही फर्स्ट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, अनदर रे गोज टू द ऑप्टिकल सेंटर passes through the optical center that goes undeviated। ठीक है, जो फर्स्ट रे है वो कहां से पास होगी? वो होगी आपकी प्रिंसिपल फोकस से। When a ray parallelly enters to the convex lens, it goes bend inward and passes through the focus. This is the focus point. Now here the 2 rays after passes meet. This point of meeting is called image formation. यहां पर इमेज होगी। अब यहां पर भी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो मतलब कैसी इमेज बनी है? यहां पर भी इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है यहां पर। ठीक है ना। नंबर 2 कैसी इमेज है? रियल है। नंबर 3 यहां पर जो इमेज बनेगी वो भी स्मॉल बनेगी, स्मॉल। यहां पर मेरा पेन नहीं है, स्केल्स नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा बिग दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूं, लाइक दिस। यहां पर बनेगी। This size is very large and this size very small. Image formed is small. Okay, you can also see in your books. So the nature of image is inverted, real and small when the object is present beyond 2f. यानी दूर तो है but we can easily measure. Now number 3 case. थर्ड केस में क्या होगा? When the object is at 2f, यानी इस पोजीशन पे आ जाएगा जब एग्जैक्टली 2f, यानी 2f तो ज्यादा दूर नहीं है, लेंस के बहुत ज्यादा पास आ गया 2f पे, तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पर भी हमने 2 केसेस लेने हैं। कौन कौन से केसेस होंगे हमारे? वो फर्स्ट जो रे है वो पैरेलली जाएगी, और जो सेकंड रे है वो देखो वहां दूर से जा रही है, पास हो गई है, और ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट गोज अनडेविएटेड। प्रिंसिपल ये पैरेलली एंटर करेगी तो वो कहां से इमर्ज होगी? वो फोकस से इमर्ज होगी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी क्या वो सेम साइज की बनेगी या बिगर होगी या स्मॉल होगी? यहां पर बनेगी बेटा सेम साइज की। जितना साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उतने साइज की ही यहां पर क्या बनने वाली है? इमेज बनने वाली है। लेट्स सी हियर। If your object having a height of 50 centimeter, the same height is of image. यहां पर भी इमेज की 50 सेंटीमीटर ही हाइट होगी, यानी हैविंग सेम साइज। अब यहां पर कंसीडर कर, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द थर्ड केस? ऑब्जेक्ट एट 2f। रियल, यस इट इज रियल। इन्वर्टेड, यस इट इज इन्वर्टेड। स्मॉल, नॉट स्मॉल, सेम साइज। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज when the object is present exactly at 2f। तो जितना पास आता जा रहा है इमेज क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। दोनों केस में पहले स्मॉल थी, सेकंड केस में भी स्मॉल आई, दोनों केस में स्मॉल थी। ऑब्जेक्ट दूर थे, इमेज आपकी स्मॉल थी। अब ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो इमेज का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। अभी इमेज का साइज सेम साइज का हो गया ऑब्जेक्ट का। नाउ कंसीडर नेक्स्ट थर्ड केस।
Fourth case, object between f and 2f. What happened in this case? When the object is present between f and 2f, जब f और 2f के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट है जो काफी पास आ गया, when the object is present between f and 2f, we going to consider two rays. One rays enter parallelly and the another ray enter through the optical center. What happens? The first ray, it goes inward, it bends inward and passes through the focus like this. Center goes undeviated. Now the point, this ray meet at very far, काफी दूर जाके मिलती है, but मिल जाती हैं. The image formed is real है. Why real? Because the rays actually meet after refraction. Second case, inverted है, because it is present below the principal axis. Number 3, the size of image very large, काफी बड़ा बना है, very large. First case small, second case small, और third case same size, यानी साइज बड़ा हो गया. Fourth case साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया. ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है लेंस के, और जो इमेज का साइज है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है ना. नाउ सेकंड केस, ऑब्जेक्ट एट focus. What happens when the object is present exactly at focus? What happens in this case? So again we're going to consider two rays. Number one, that runs parallel to the principal axis. After passes through the lens, it passes through the focus, right, like this, and the another is passes through the optical center. But in this case, my dear students, this ray never going to combine because they run parallelly. ये दोनों parallel रन कर रही हैं after refraction. और ऐसी रेज जो after refraction के बाद parallel रन करते हो, they will never meet, वो कभी नहीं मिलेंगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज आपकी नहीं बनेगी, no image form. ओके, इन्फिनिटी में. अब होना तो क्या है कि इमेज नहीं बनेगी, लेकिन हम बुक्स में क्या कंसिडर करते हैं, बुक्स में हम बोलते हैं कि हाँ मीट कभी ना कभी मीट करेगी. कब मीट करेगी हमें नहीं पता. आफ्टर 10 ईयर, लाख ईयर्स, आफ्टर करोड़ ईयर्स कब मीट कर, बट हम बोलते हैं कि हम मीट करें, कभी ना कभी तो मीट करेगी, कि कोई भी चीज़ एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती, ये बोलते हैं. ठीक है ना. तो हम इसीलिए यहाँ पर हम केस में ये नहीं बोलेंगे नो इमेज फॉर्म. हम हम यहाँ पर फीचर्स लिखेंगे. फर्स्ट फीचर्स क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट फीचर आएगा बेटा रियल. जो इमेज बन रही वो रियल बनेगी. कभी ना कभी अगर बोल रहे हैं कभी ना कभी मीट करेगी, तो मीट करेगी तो रियल होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड. नाउ व्हाट विल बी द साइज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस? द आंसर इज मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मच लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मच लार्जर, बहुत बड़ी बनेगी. आपको देखो ना, मान लो मैं इसको आगे का यहां तक इमेजिन करो कि वो आफ्टर 10 लाख ईयर्स, आफ्टर 1 करोड़ ईयर्स वो मिल जाती हैं, यहां पर आके मिल जाती हैं. ये वो केस है. वैसे होगा तो बहुत दूर होगा कहीं, लेकिन कितना बड़ा बन गया है देखो. इमेज इतनी है, इमेज काफी बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो जब भी मिलेगी तो इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा. ठीक है ना. नाउ लास्ट केस, व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड ओ? जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में, यानी काफी पास रख देते हैं, लाइक दिस. दिस इज ओ, द ऑप्टिकल सेंटर, फोकस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड ओ, what will be the nature of image formed? Here we can, first case, the ray passes through the, run parallelly to the principal axis and passes through the convex lens, and after passing it goes through the principal focus. Optical center, second ray passes through the optical center. Here we can easily recognize that these rays will never meet. ये तो कभी नहीं मीट होने वाली, क्योंकि पैरेलली भी रन नहीं कर रही हैं, ये तो बहुत दूर दूर जा, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, और जो रेज डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं वो तो कभी नहीं मिल सकती. ठीक है ना, ये तो हम बोल सकते हैं. बट हमारी आईज अगर पास में है तो क्या इमेजिन करती हैं कि बैक साइड में कहीं ना कहीं मिल रही होंगी, ऐसे. दिस इमेजिनरी पॉइंट, यहां पर बनती है इमेज. ठीक है. ये कैसी इमेज है बच्चों? वर्चुअल है, क्योंकि यहां पर रेज एक्चुअली मीट नहीं होती हैं. कहां पर मीट हो रही हैं? बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे मीट हो रही हैं. कैसी है? इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, सीधी है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है. ठीक है. और जो इमेज का साइज है वो क्या है? लार्ज है.
इमेज का साइज क्या है बेटा, लार्ज. सो दिस इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द लास्ट केस. सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्म्ड ऑफ कन्वेक्स लेंसेज. लास्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम, वो है हमारा कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है. माय डियर स्टूडेंट्स, इन कनकेव लेंस देयर इज नो स्पेशल केसेस. यहां पर कोई स्पेशल केसेस नहीं है. व्हाई? द रेज फॉलिंग ऑन अ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज डाइवर्ज. ये हमें पता है कि जब भी रेज कन्वेक्स लेंस के ऊपर आती हैं दे विल ऑलवेज डाइवर्ज, वो हमेशा स्प्रेड हो जाएंगी. ओके, सो देयरफॉर नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, मैटर ही नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहां पर है. इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी और वो हमेशा इरेक्ट होगी और साइज में स्मॉल होगी. ठीक है ना. तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, पास है, कहीं पर. इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज दैट इज इरेक्ट, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. एंड नंबर 3, स्मॉल साइज, हमेशा स्मॉल साइज की बनेगी और वो उसी साइड इमेज बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट है. अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज भी इसी साइड होगी. दिस इज द ऑब्जेक्ट. 2 rays. Number 1 ray goes parallel to the principal axis, it goes outward direction. Number 2, optical center, that goes undeviated. तो क्या ये मीट हो रही है? मीट नहीं होगी एक्चुअली में, बट वर्चुअली हम मीट कर सकते हैं बैक साइड में यहां पर. सो हेयर इमेज फॉर्म, दिस इमेज इज वर्चुअल नॉट रियल, असली में नहीं है. इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है और साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट छोटा है. तो यहां पर सिर्फ आपने ये केसेस याद रखने, सिर्फ ओनली 1 केस, बहुत सारे केसेस नहीं है. तो ऑब्जेक्ट आपको चाहे कितनी दूर हो, कितनी पास हो, ये तीनों केसेस आएंगे आपकी इमेज में. इमेज हर बार ऐसी बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल साइज की होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज. गुड बाय.